Hello everyone, in this video we will discuss the NCERT exemplar problems of class 9th chapter 3rd atoms and molecules. So here is the first question. Which of the following correctly represent the 360 gram of water? Now first of all, this is the question which is based on the mole concept, and for the mole concept you must know the formula, that is small n is equal to given mass over the molecular mass. This is further equal to, just we can say, n number of atoms divided by the Avogadro number. Now just we solve this question here. What is given here? 360 gram, which means small m is given, and that of water we required its molecular mass. So first of all calculate what is given to you, m, that is 360 gram. What is the molecular mass of water? Water is formula H2O. For the hydrogen, atomic mass is 1 into 2 plus 16, so answer comes out to be 18. So number of moles, n is here, it is 360 divided by 18, which comes out to be 20 moles. This is the first point. But आपको क्वेश्चन में मोल्स और एटम्स दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं. दैट व्हाट डज दिस 360 ग्राम? इट रिप्रेजेंट 20 moles of water, 2 moles of water? No, it represent 20 moles of water. So this statement is correct, but we have to also find out the number of atoms here. So we use this formula. N we have already calculated. Na we know that Avogadro number is 6.023 into 10 raised to power 23. So we place the value here, 20 n 6.023 into 10 raised to power 23. So 6 to 12, so it is 120 into 10 raised to power 23. मैं इसका पीछे की वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो 120 के लिए हम लिख सकते हैं, ये दो वैल्यूज को इधर लेके गए तो 1.20 इंटू 10 रेज टू पावर 25. दो प्लेस को हम इधर लेके गए तो वो पावर में ऐड हो गए +2. अब ये देखते हैं क्या ये आंसर में ये दो ऑप्शंस हैं. सो यस, फर्स्ट इज द 20 moles of water. Yes, given to you. 1.0224 into 10 raised to 25 molecules of water. Yes, it is given. So option second and fourth are the correct one. That is D here is the correct answer for the first question. Now the second is the statement. Which of the following statement is not true about the atom? Atoms are not able to exist independently. Yes, this statement is incorrect. Atom is able to exist. Now the next statement is atoms are basic unit from which molecules ions are formed. This is correct. Atoms are always neutral in nature. Yes, this is also correct. Atoms aggregate in large number to form the matter that we can see or feel. Yes, this also is correct. So first option here is incorrect. Atoms may or may not be able to exist independently. It is not always it is not able to exist, but sometimes atoms able to exist independently. So first statement here is incorrect. Now the next, the chemical symbol for the nitrogen gas here. Now the point is, for the nitrogen the symbol is N here, but it is written nitrogen gas, which means N2. So here option B is correct. Next, the chemical symbol for the sodium is, now sodium, many of the students will write according to the first two letters, but we know that we have taken its Latin name natrium, so Na. That too second letter must be small here. So D option here is correct. Now the next question, which of the following would weight the highest? Which means we have to find out the given mass of each and every option. So first one is 0.2 mole of sucrose. So sucrose having formula C12H22O11. So first of all we found out its molecular mass. So 12 into 12, because 12 atom and molar mass of carbon is 12. Hydrogen is 1 into 22 and oxygen is 16 into 11. So 12 into 12, 144, 1 into 22, 22, 16 into 11, 176. Now we will find the sum of it. So it comes out to be 242. Now we know that small n is equal to small m by capital M. We have to calculate this here. This is given to you. 0.2, so 0.2 into 242 is the mass here. So it will be 2 to a 4, 4 to a 8, 2 to a 4, that is 48.4 gram mass is of 0.2 moles of sucrose. Now the next part, 2 moles of CO2. We know that C plus
2 moles of O here. So carbon 12, 16 into 2, 32. 32 means 44 gram. Now we know that N is equal to small m by capital M. Small n here is 2. Small m we have to calculate and capital M is 4. So answer comes out to be 88 gram. So next is the 2 moles of calcium carbonate. So first of all we have to find out the mass of the calcium carbonate here. So calcium is Ca plus C plus 3O. Calcium atomic mass 40, carbon 12, 16 to the 48. So it will be 52 plus 48. Answer comes out to be 100 gram. And what we have to find out the mass of 2 moles. So 2 into small m by capital M. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, ये है. हमने इनकी जगह 2 पुट किया, कैपिटल M की जगह 100 पुट किया, तो आंसर आएगा 200 ग्राम. तो अभी तक इन तीनों में इसका सबसे ज़्यादा है. अब हम बात करते हैं 10 मोल्स ऑफ वाटर. वाटर H2O जिसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 2 into 1 plus 16 comes out to be 18. अब N है स्मॉल m इंटू कैपिटल M. कैपिटल M 18 हो गया, स्मॉल n 10 हो गया. 10 into 18, 10 into 18 comes out to be 180. तो अब अगर हम इनका मास देखें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन का मास था 48.4. सेकेंड ऑप्शन का मास आया दैट इज ऑफ द CO2 88 ग्राम. थर्ड ऑप्शन का मास आया इट इज 200 ग्राम. एंड फॉर द लास्ट ऑप्शन इट इज 180 ग्राम. नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाइएस्ट. सो आंसर विल बी सी है. हमें सबका यहाँ पे गिवन मास निकालना था एंड वी हैव टू कंपेयर इट एंड वी गेट दिस आंसर. Is which of the following has the maximum number of atoms? Now A option, B, C and D, what is common in all these options? That given mass is same. So one can say that all containing the same amount of atoms. No, because the molecules here are different. Now the first case is, so first of all we calculate the individual moles for each of the given compound. So first of all is 18 gram of water. And what is the molecular mass of water? Water is 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So 2 into 1 plus 16 comes out to be 18. तो molecular mass कितना हुआ 18 और small m कितना है 18. तो 18 divided by 18 it comes out to be 1 mole. This is the first step. इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है हमें सभी एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के. तो दिस इज द ए पार्ट. अब बी पार्ट का इज द 18 ग्राम ऑफ O2. 18 ग्राम ऑफ O2 ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स चल रहा है. 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अभी हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. O2 कंटेन O प्लस O दैट इज 16 प्लस 16 32. तो दिस इज द मॉलिकुलर मास, दिस इज द गिवन मास. सो n स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. इसको आप इस तरह से लिखेंगे तभी आप बार बार जितनी बार लिखेंगे तब आपको लर्न हो जाएगा ये. नाउ स्मॉल m हियर इज 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम एंड इट कम्स आउट टू बी 0.56 मोल्स. नाउ द C पार्ट हियर इज 18 ग्राम ऑफ CO2. 18 ग्राम ऑफ CO2. So it contains C plus 2O atoms. Carbon is 12 and 16 into 2 32. That comes out to be 44. So small n is equal to small m divided by capital M. So here 18 divided by 44. So when 18 is divided by 44, then it comes out to be 0.409 moles. And the D part here is 18 gram of CH4. So first of all calculate the molecular mass of CH4. It contains 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. 1 carbon stands for 12 and 4 hydrogen into 1. So 12 plus 4 16 here. So now small n is equal to small m by capital M, that is 18 divided by 16. Now in all these cases here 18 divided by 18 is 1. Here it is 0.5 mole, here it is 0.4 and in this case it comes out to be 1.125 moles. ये एक फर्स्ट स्टेप हुआ इस क्वेश्चन का जिसमें हमें सबके मोल्स पता लग गए. अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं.
एंड वी नो दैट एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n बाई Na, ठीक है। तो n को हमने Na से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द मोल हेयर मोल इज 1 इंटू Na, और साथ में ही कितने नंबर ऑफ एटम्स H2O में प्रेजेंट है, क्योंकि हम इसमें सभी एटम्स को काउंट कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। Na तो सब में ही कॉमन फैक्टर है ना, तो इसका मतलब हुआ इट इज़ 3Na। अब नेक्स्ट वाले के लिए 0.5 है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 0.5 6 को हम चलो 6 ले लेते हैं, 0.6 मोल्स, और दैट इज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स इन O2 विच इज 2 into Na, which comes out to be 1.2 Na, ठीक है। Then in case of 18 ग्राम of CO2 moles are 0.409, इसको हम 0.4 ले लेते हैं, and we multiply with this number of atoms in this case 2 O and 1 carbon, that is 3 into 3 and into Na. It again comes out to be 4 3 12, that is 1.2 Na. Now the next last one here, which have 1.125 moles, so it is 1.1 into, now calculate number of atoms here, 4 plus 1 5 into Na, it comes out to be 5.5 Na. अभी हमने सिर्फ Na की वैल्यू पुट नहीं की है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, सब में यही चीज़ कॉमन है। तो जो फैक्टर डिसाइड करेगा वो नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आर मैक्सिमम इन केस ऑफ CH4. So in this case D here is the answer which contain maximum number of atoms. Again I am repeating, ये क्वेश्चन था जिसमें हमें गिवन मास सबका सेम था, पर मॉलिक्यूल्स सारे डिफरेंट थे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला जाता तब हम इसमें एटम्स नहीं देखते, तब हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते 3 से या 4 से या 5 से। देन वी हैव ओनली कैलकुलेटेड द मोल एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय Na. But in this case it is asked about the atoms, so we have to find out first of all the individual atom here. So there are 3 atoms and then we will find out, multiply it by Na. तो ये एक different point है थोड़ा सा, which you can easily understand in the next question, because in this case now they have asked the maximum number of molecules. देखिए कैसे different है ये question, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स था तो हमें इन सबको इंडिविजुअल लेना पड़ा, पर यहाँ पे हम इसे एक एंटिटी 1 एंटिटी लेंगे, 1 ग्राम 1 ग्राम। अब इस केस में भी गिवन मास सबका सेम है, सो गिवन मास सबका सेम है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। फर्स्ट वन इज 1 ग्राम ऑफ CO2. नाउ इफ वी कैलकुलेट द molecular mass of CO2, it is C plus 2O, that is 12 plus 2 into 16 to 32, that comes out to be 44. So now if we calculate number of moles, N is equal to 1 by 44. These are the moles which are present here in the first case. Now the second case, the number of moles here, 1 gram of N2, so N comes out to be 1 and N2 is 14 plus 14, 28, 1 by 28. In the third case, it is 1 gram of H2, N is equal to 1 divided by molecular mass, 1H, H का molecular mass 1 होता है तो H2 का 2 हो जाएगा, it is 1 by 2. And in the fourth case, it is 1 gram of CH4, तो N divided by 1 plus carbon having mass 12 plus 4H comes out to be 16, so it is 1 divided by 16 moles. So this is the common. अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा किस में है, 0.5, ये मोल्स हो गए, ठीक है। और बाकी सब में यही वैल्यू 0.5 से कम है। हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको अब हमने कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, n बाई Na। तो जिसका भी n ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा हैं, थर्ड केस दैट इज 1 ग्राम ऑफ H2 में। वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो हर एक को मल्टीप्लाई करके, बट ये एक शॉर्टकट तरीका है कि जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दिए और यहाँ दिख ही रहा है जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ऊपर कम आएगी, ये से थोड़ा बड़ा है कम है यहाँ पे तो ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा आएगी, पर ये सबसे कम है डिनोमिनेटर में
तो इसकी मैक्सिमम 0.5 वैल्यू आने वाली है। तो अब हम इसको 6.023 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स हाइड्रोजन कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिलता है, अगर हमें सेम अमाउंट गिवन है, सेम अमाउंट ऑफ गिवन मास है, सो द वन हैविंग द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और सबका गिवन मास सेम है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर। तो किस में ज़्यादा आएगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, सॉरी एटम और मॉलिक्यूल्स। इन दैट केस इट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम इसे एक एंटिटी ले रहे हैं। अगर यहाँ एटम पूछा होता तो अगेन हम वही करते, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 एटम से मल्टीप्लाई करना था, इसको 2 से, इसको 5 से और इसको अगेन 2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.42 ग्राम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, वी नो दैट स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na बाय N0 बाय Na। ठीक है, हमें मास निकालना है 1 एटम ऑफ, तो इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है? 1। मास ऑक्सीजन का होता है 16 और Na हमें पता है, तो 16 ऊपर गया तो m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हियर क्वेश्चन दैट इज m is 16.023 into 10⁻23, 16 by. So A option here is correct answer. Now the next question here, 3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in the solution. अब हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर भी है और हमने सुक्रोज डाला है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो देखो ऑक्सीजन एटम यहाँ भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम यहाँ भी प्रेजेंट है। अब हमें बताने हैं द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है, एट द एंड हमें एटम्स निकालने हैं पर हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो कितने ग्राम गिवन मास ऑफ सुक्रोज इज 3.42, सो स्मॉल m इज 3.42 और कैपिटल M जो कैपिटल मास होता है दैट इज 12 कार्बन 12 इंटू 12 प्लस 22 into 1 and 11 into 16 and whole mass comes out to be 342। यहाँ मैं एक पॉइंट अगेन बताऊंगी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट इसमें किया था, इसमें मैंने मास आई थिंक 242 लिया है। तो अब आप, क्योंकि अब आपको सॉल्व करना आ गया है, अब आप 342 लेके देखें कि क्या यही आंसर रहेगा जिसमें हमने बोला था कि सी पार्ट का सबसे ज़्यादा मास है। ठीक है, सो कैलकुलेटेड बाय चेंजिंग द मास विच इज़ एक्चुअल मास इज 342। तो अब हमने 342 से डिवाइड किया, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? नंबर ऑफ एटम्स। तो n और Na हमारा होता है 6.023 इंटू 22 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻, हम इसको लिखेंगे -2 ना, तभी ये कैंसिल हुआ 10⁻², तो पावर -2 हो जाएगी। तो -2 23 में से -2 गए तो 6.022 इंटू 10⁻21। और अगर हम इसको सेम ही बेस में रखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01, क्योंकि ये इसी के इक्वल है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और सुक्रोज में एक्चुअल में कितने थे? 11 थे। तो अब हम इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 एटम्स से। सो अगेन बेस सेम रखना चाहूँगी मैं, तो 11 इंटू 0.1 कम्स आउट टू बी 0.11, 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो हुए सुक्रोज के एटम। अब हम वाटर की बात करें तो वाटर कितना था? 18 ग्राम ऑफ वाटर था। तो गिवन मास 18 है और मॉलिक्यूलर मास भी वाटर का H2O दैट इज 2 + 16 18 ही होता है।
n आपको निकालना है और Na आपको गिवन है। तो अगेन कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अब H2O तो एक ही है तो इतने ही एटम आ गए, ठीक है, 22 इंटू 10⁻23। अब टोटल एटम्स कितने होंगे वाटर और सुक्रोज को मिला के, तो इस टर्म में हमें ऐड करना है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 0.11 हो जाएगा 1.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और यही है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं फाइनली इट कम्स आउट टू बी 6.68 इंटू 10⁻23 एटम। सो दिस इज द आंसर है। पावर इज रिमेन सेम, तो इतना तो आना नहीं है, इससे ज़्यादा ही आना है। तो इससे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ए पार्ट। तो बिना मल्टीप्लाई किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन एनर्जी इज ईदर गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, और विदाउट एनी एनर्जी चेंज। So here answer is the C option, because either we are giving the energy to changing the physical state or we are taken out. So option C here. For example, water solid से liquid हो जाता है, ठीक है, और liquid से solid हो जाता है। तो एक में हम एनर्जी देते हैं और एक में हम एनर्जी उसमें absorb करवा रहे हैं।